برطانوی پارلیمنٹ کے کمیٹی روم میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی زیر صدارت کشمیر کانفرنس، لارڈ قربان حسین، سعیدہ وارثی، برطانوی اراکین پارلیمنٹ، ناروے کے سابق وزیر اعظم، OIC کے نمائندوں اور کشمیری رہنماؤں کی شرکت۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم کی پرزور مذمت۔ کشمیر میں انسانیت خون کے آنسو رو رہی ہے۔ بھارت نے مقبوضہ کشمیر میں ڈریکولائی قوانین نافذ کر رکھے ہیں۔ پوری نسل کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔ شاہ محمود قریشی کا لندن پارلیمنٹ ہاؤس میں کشمیر کانفرنس سے خطاب۔ نیب ریفرنسز میں سزا یافتہ نواز شریف مکمل فٹ قرار۔ سروسز اسپتال میں ہونے والے ٹیسٹ بھی کلیئر۔ دل کا دورہ پڑا نہ ٹیسٹ رپورٹ مثبت آئی۔ دل کا مرض پرانا ہے، رپورٹس نے کہانی کھول کر رکھ دی۔ پرنسپل سیمز محمود ایاز کہتے ہیں کہ نواز شریف کو کوئی سنجیدہ مسئلہ نہیں، علاج کے لیے باہر بھجوانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ میاں صاحب کے جو ٹیسٹ آئے ہیں اس میں NRO کی کمی خون میں پائی گئی ہے۔ نواز شریف صاحب کی طبیعت ٹھیک ہے لیکن نیت جو ہے وہ تھوڑی سی خراب ہو رہی ہے۔ نیت ان کی جو ہے وہ پاکستان سے باہر جانے کی ہے، لندن جانے کی ہے۔ اب دیکھیں نا، کھودا پہاڑ نکلا چوہا، وہ بھی پلاسٹک کا۔ وزیر اطلاعات فواد چودھری کے نواز شریف پر وار، کہتے ہیں نواز شریف کی ٹیسٹ رپورٹ میں NRO کے جراثیم زیادہ آئے ہیں۔ فیاض الحسن چوہان بولے کھودا پہاڑ نکلا چوہا، وہ بھی پلاسٹک کا۔ نواز شریف کا دل مکمل ٹھیک، رپورٹس کلیئر ہیں، بس معمولی پتھری کی شکایت ہے۔ نواز شریف کی نیت لندن جانے کی ہے۔ حکومت نے جیل میں VVIP سہولیات دے رکھی ہیں۔ لندن میں صدر آزاد جموں و کشمیر سردار مسعود خان کے اعزاز میں برٹش مسلم میئرز ایسوسی ایشن کی جانب سے عشائیہ، میئر والتھم فارسٹ عمران حسین اور کمیونٹی رہنماؤں کی بھرپور شرکت۔ کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے پاکستانی وزیر خارجہ کی مظاہروں میں شرکت حوصلہ افزا ہے۔ پاکستان ہمیشہ سے نہتے کشمیریوں کے ساتھ کھڑا ہے۔ سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر بیرسٹر سلطان محمود چودھری کی برمنگھم میں گفتگو۔ آزاد کشمیر کے سابق وزیر اعظم اور مسلم کانفرنس کے سربراہ سردار عتیق احمد خان کی برمنگھم آمد، کہتے ہیں مسئلہ کشمیر کے لیے سب کو ایک پلیٹ فارم پر متحد ہونا ہوگا۔ رکن برطانوی پارلیمنٹ خالد محمود کے بھتیجے کے انتقال پر اظہار تعزیت۔ بھارت مقبوضہ کشمیر میں ظلم و ستم کی تمام حدیں پار کر چکا ہے۔ عالمی برادری بھارتی بربریت کا نوٹس لے۔ مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کے سینئر وزیر چودھری طارق فاروق کی لیوٹن میں 92 نیوز سے خصوصی گفتگو۔ لندن میں یوم یکجہتی کشمیر پر بھارت مخالف احتجاج کے لیے اوورسیز پاکستانیوں کا جوش و جذبہ عروج پر۔ بریڈ فورڈ سے پاکستان تحریک انصاف کے سینکڑوں کارکن قافلے کی صورت میں لندن مظاہرے میں شرکت کریں گے۔ گلاسگو میں اسکاٹش ہیومن رائٹس فورم کے زیر اہتمام کشمیر سیمینار۔ بھارت مقبوضہ کشمیر میں کشمیریوں کی نسل کشی میں مصروف ہے۔ آنے والی نسلیں بھارتی مظالم کبھی فراموش نہیں کریں گی، مقررین کا خطاب۔ دنیا بھر میں بسنے والے پاکستانیوں کا مقبوضہ کشمیر کے بھائیوں سے اظہار یکجہتی کا سلسلہ جاری۔ سعودی عرب، یونان، جنوبی افریقہ اور دیگر ممالک میں تقاریب، پاکستانی کمیونٹی کی بھرپور شرکت، بھارتی مظالم کی سخت مذمت۔
اوورسیز پاکستانیز ویلفیئر کونسل نے بھی کل لندن میں ہونے والے احتجاجی مظاہرے میں شرکت کا اعلان کر دیا ہے۔ تفصیلات بتا رہے ہیں بیورو چیف یو کے غلام حسین اوان اپنی اس رپورٹ میں۔ اوورسیز پاکستانیز ویلفیئر کونسل نے کشمیریوں سے یکجہتی کے طور پر کل لندن میں ہونے والے احتجاجی مظاہرے میں بھرپور شرکت کا اعلان کر دیا، جس کا مقصد پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی کے علاوہ دیگر انسانی حقوق کی علمبردار تنظیموں کو بھی بھارتی مظالم سے آگاہ کرنا ہے۔ اوورسیز پاکستانیوں کی تنظیم OWPC کے بزنس فورم، علماء مشائخ فورم، سینئر سٹیزن فورم، کشمیر فورم، وومن فورم، کرسچن فورم، ہیومن رائٹس فورم، یوتھ فورم اور کونسلرز فورم کی زیر اہتمام 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ میں ہونے والے احتجاج کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ کل برطانوی وزیر اعظم ٹریزا مے کی رہائش گاہ کے سامنے پرامن احتجاج کے لیے تمام انتظامات مکمل کر لیے ہیں۔ برطانیہ کے دورے پر آئے صدر آزاد جموں و کشمیر سردار مسعود خان کے اعزاز میں چیئرمین برٹش مسلم میئرز ایسوسی ایشن کی جانب سے ایک عشائیے کا اہتمام کیا گیا، جس میں میئر والتھم فارسٹ اور MP عمران حسین سمیت کشمیری کمیونٹی کے رہنماؤں نے شرکت کی۔ تفصیلات سلیم صابری کی اس رپورٹ میں۔ تقریب کے مہمان خصوصی سردار مسعود خان نے اپنے خطاب میں کہا کہ کشمیریوں کی یہ آزادی کی جنگ 200 سال سے جاری ہے، کبھی راجوں مہاراجوں کے خلاف اور کبھی بھارتی ظلم و بربریت کے خلاف۔ نریندر مودی اور اس کی جماعت انتہا پسندی پر یقین رکھتی ہے۔ بھارت آگ اور بارود کے زور پر کشمیریوں کے حق خود ارادیت کو چھیننا چاہتا ہے، لیکن آج 71 سال گزرنے کے باوجود بھی اس کو اپنے مذموم مقاصد میں کامیابی نہ حاصل ہو سکی۔ 5 فروری کے احتجاج کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ برطانیہ سمیت پوری دنیا سے کشمیری پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے اپنے حق خود ارادیت کے لیے ایک بھرپور مظاہرہ کریں گے اور ایک انٹرنیشنل کانفرنس بھی بلائی جا رہی ہے۔ برطانیہ میں جو پاکستان اور کشمیر کی کمیونٹی ہے، اس نے ہمیشہ مثالی کردار ادا کیا ہے۔ بھارت نے اپنے ظلم و ستم کی انتہا کر دی ہے، وہاں جو ہے آج بھی قتل عام ہو رہا ہے۔ پورے کا پورا مقبوضہ کشمیر احتجاج کی وجہ سے بند پڑا ہوا ہے۔ نریندر مودی نے وہاں دورے کا فیصلہ کیا تو وہاں سارے کے سارے جو لوگ ہیں وہ نریندر مودی کی حکومت، اس کی پالیسیوں، ان کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ برطانیہ میں جو کوششیں ہو رہی ہیں یہ برابر ہو رہی ہیں۔ ایک تو یہ وجہ ہے کہ جو ہمارے کشمیری یا پاکستانی کمیونٹی ہے اس کی سب سے بڑی تعداد یہاں برطانیہ میں موجود ہے، اور دوسرے یہ لوگ متحرک بھی ہیں۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ کتنے MPs جو ہے وہ ہاؤس آف کامنز میں موجود ہیں، پیئرز بھی موجود ہیں۔ تو اس کی وجہ سے ان کی اجتماعی کوششوں کی وجہ سے اور یہاں کمیونٹی کے جذبے کی وجہ سے ہر سال جو ہے وہ کامیابی ہوتی ہے، لیکن اس سال جو ہے نئے سرے سے آگاہی پیدا کی جائے گی۔ ممبر آف پارلیمنٹ عمران حسین سمیت دیگر رہنماؤں کا کہنا تھا کہ جس طرح کشمیر کی وادی میں ظلم و ستم کا بازار گرم ہے، اس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ ایک خاص پلاننگ کے تحت نوجوانوں کی نسل کشی کی جا رہی ہے۔ And we've heard a lot about the struggle for Kashmir independence and the human rights abuses that have been carried on there, and I would like to wish every success to Mr. Khan in his endeavours in Parliament, meeting with parliamentarians this week. آج کی جو کانفرنس ہے بڑی آئی اوپننگ کانفرنس ہے، اور جس طریقے سے پریزیڈنٹ صاحب بتا رہے تھے کہ 500,000 کے قریب لوگ جو ہیں انہوں نے اپنی شہادت دی ہے، وہاں پہ سیکشول ایکسپلائٹیشن ہوئی ہے، لوگوں کی بہنائی چلی گئی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو جو دنیا کا ضمیر ہے اس کو جاگ جانا چاہیے۔ وہ جو لوگ 71 ایئر سے سفر کر رہے ہیں، اب ٹائم آ گیا کہ ان کو جو ہے وہ آزادی دی جائے۔ آج کے حوالے سے میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ جو کچھ آزاد کشمیر میں ہو رہا ہے یہ بہت ہی ظلم ہو رہا ہے، اور یہ وقت آ گیا ہے اب کہ یورپین یونین کو بھی دیکھنا چاہیے، اور جو ہم اوورسیز پاکستانی ہیں جتنی ہم محنت کر رہے ہیں، ہمیں ہر ایک آواز پہ سامنے آنا چاہیے۔ ہمارے ریاست جموں کشمیر میں جو انڈین ہیلڈ پارٹ ہے اس میں جو انسانی حقوق کی جو وائلیشنز ہو رہی ہیں اس کے بارے میں آج یہاں کونسلر لیاقت صاحب نے ایک میٹنگ کال کی تھی، جس میں ہمارے پریزیڈنٹ آزاد کشمیر کے وہ بھی آئے تھے۔ تو وی آل ڈو اسٹینڈ ود دا پیپل آف دا جموں اینڈ کشمیر۔ جموں کشمیر کے اندر جتنی بھی انسانی حقوق کی وائلیشنز ہیں ان کو ہم کنڈیم کرتے ہیں۔ جتنے بھی لوگ یہاں پہ آئے تھے، آپ سولیڈیرٹی شو کریں آن 5 فیبری کہ وہاں پہ آئیں، اور جو ہمارے بہن بھائی مقبوضہ کشمیر میں ہم ان کو اکیلے نہیں رہنے دیں گے، ہم ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ Again, as we see the run up to the 4th and 5th, where you know there are a number of
programs both in Parliament and outside to mark Kashmir Solidarity Day. I believe that again here today we saw the people from across London district come here today, show solidarity with the sons and daughters of Kashmir, and make very clear that the persecution, the injustice and the suffering must end. जहाँ पर ह्यूमन राइट्स वायलेशन इंडिया ऑक्यूपाइड हो रहा, वहाँ पर हमारा जुल्म हो रहा, जो हमारी माँ बहनें टॉर्चर हो रही हैं, रेप्स हो रहे हैं, वहाँ पर हमारी जानें कुर्बान कर रहे हैं, that needs to stop. All the human rights violation needs to stop, and Kashmir needs to have independent freedom of independency for Kashmir is a must. उनका मजीद कहना था कि ये जुल्म और जबर का बाजार ज्यादा देर तक नहीं चल सकता और आज़ादी की सुबह जल्द तुलू होने वाली है। आखिर में कम्युनिटी के लिए बेहतरीन खिदमात सरंजाम देने वाली शख्सियात को शील्ड्स दी गईं। बर्मिंघम में आज़ाद कश्मीर के साबिक वज़ीर आज़म और तहरीक इंसाफ कश्मीर के सदर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी का कहना है कि ये एक तारीखी मौका है कि पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा खुद लंदन में फरवरी यौम यकजहती कश्मीर के मौके पर कश्मीरियों के मुजाहरे में शिरकत कर रहे हैं। मज़ीद तफसीलात आबिद काज़मी की इस रिपोर्ट में। बर्मिंघम में पार्टी रहनुमाओं के हमरा बैरिस्टर करामत की रहायशगाह पर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि कश्मीरी अवाम के लिए ये एक नहायत हौसला अफजा बात है कि पाकिस्तान के वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी वजीर आजम बरतानिया की सरकारी रहायशगाह के बाहर यौम यकजहती कश्मीर के प्रोग्राम में शरीक होंगे। मुख्तलिफ सवालात के जवाब में उन्होंने कहा कि जब तक भारत की तमाम अक़लियतें इकट्ठी नहीं होंगी उस वक्त तक भारत में हिंदू बनिए की आमरीत कायम रहेगी। बरतानिया की भी जो तवज्जो है, यूरोप की जो तवज्जो है, इंटरनेशनल कम्युनिटी को हम उस दिन कहेंगे कि वो क्या उन्हें जो मकबूजा कश्मीर में आए रोज़ बढ़ते हुए मज़ालिम है वो नज़र नहीं आ रहे, और जब से वहाँ पे इलेक्शन की गहमा गहमी है भारत में, उस वक़्त से मोदी सरकार ने वहाँ पे ज़्यादा जुल्म करना शुरू कर दिया है। इस मौके पर दीगर रहनुमाओं का कहना था कि भारत में इंतखाबात होने वाले हैं और बीजेपी जो कि हिंदू इंतहा पसंदों की जमात है, हिंदू इंतहा पसंदों के वोट हासिल करने के लिए मुसलमानों और भारत में मुकीम अक़लियतों पर मज़ालिम की इंतहा किए हुए है। 5 फरवरी के हवाले से कैंपेन मीटिंग हुई है जिसमें PTI के अलावा भी दीगर जो है वो कम्युनिटी कश्मीरी लोग मौजूद थे। 5 फरवरी के हवाले से हम हमेशा की तरह जो है चूँकि कश्मीर में जो जुल्म सितम हो रहा है, आज भी श्रीनगर सारा बंद है, वहाँ फ़ौजी छावनी में तब्दील कर दिया गया है। बरतानिया की और पाकिस्तानियों और कश्मीरियों से अपील करूँगा, जितनी भी मजहबी सियासी कारोबारी शख्सियात हैं, बराए मेहरबानी 5 फरवरी बरोज़ मंगल दिन 12 बजे 10 डार्निंग स्ट्रीट पहुँचें और कश्मीरियों से इज़हारी यकजहती करें। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी का मजीद कहना था कि करतारपुर बॉर्डर खुलवाना वज़ीर आज़म इमरान खान का एक खुशाइंद इक़दाम है। अगरचे इमरान खान चाहते हैं कि भारत से ताल्लुकात अच्छे हों, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि मकबूजा कश्मीर में जारी बर्बरियत ख़त्म की जाए और मसला कश्मीर को मुस्तकिल बुनियादों पर हल किया जाए। यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से एक बहुत बड़ा काफिला ब्रेडफोर्ड से भी लंदन एहतजाज में शामिल होगा। तहरीक इंसाफ की क़यादत में काफिला सुबह 7 बजे मैनिंगम लेन से रवाना होगा। मज़ीद तफसीलात वकार बाबर मुगल की इस रिपोर्ट में देखिए। लंदन में यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से भारतीय मुजालिम के खिलाफ होने वाले एहतजाज में शमूलियत के लिए ब्रेडफोर्ड में तैयारियां मुकम्मल कर ली गईं। PTI ब्रेडफोर्ड ने बैनर्स और कुतबे बड़ी तादाद में तैयार कर लिए हैं जिन पर मुख्तलिफ नारे दर्ज हैं। PTI बरतानिया के मीडिया कोऑर्डिनेटर आसिफ खान और दीगर ओहदेदारान का कहना था कि कश्मीर की आज़ादी एक कौमी मसला है जिसके लिए उन्हें सियासी वाबस्तगियों को बालाए ताक रखते हुए इस एहतजाज में शामिल होना चाहिए। रियासत जम्मू और कश्मीर की आज़ादी की तहरीक में बरतानिया में बसने वाले कश्मीरी और पाकिस्तानी भी मकबूजा कश्मीर के अवाम के साथ हैं, उनके साथ मुकम्मल यकजहती का इज़हार कर रहे हैं और बरतानवी और भारतीय हुकूमत से मुतालबा करेंगे कि इस मसला कश्मीर को हल करने के लिए अपना एक वाज़ेह लाया अमल दें। बरतानवी हुकूमत भारत पर दबाव डाले और भारत मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ बंद करे। मकबूजा कश्मीर के वो लोग जो दिन रात जो है भारतीय जारियत का सामना करते हैं, उनको ये पैगाम देना कि यहाँ बरतानिया में रहने वाले पाकिस्तानी और कश्मीरी हर लम्हा हर कदम पे उनके शाना बिशाना है, उनके साथ साथ हैं
और कभी भी किसी हालत में हम उनका साथ नहीं छोड़ेंगे। हमारा मकसद यही है कि चूँकि हम यूके में रहते हैं तो यहाँ की यूके की जो पार्लियामेंट है ये अपना रोल अदा करे। दे आर परमानेंट मेंबर ऑफ यूएन के ज़रिए और अपनी डिप्लोमेटिक वेन्यू से भी वो जो अपना रोल अदा कर सकते हैं कश्मीर के अवाम के ऊपर जो जुल्म और सितम रोज़ हो रहा है उसको रोकने के लिए। कश्मीरियों के साथ जुल्म हो रहा है, पूरी दुनिया को पता है, और कश्मीरियों का भी हक है कि उनको इंसाफ मिले, उनको हक मिले। जितने भी पाकिस्तानी हैं हमारे कश्मीरी हैं, या दुनिया से जितने भी लोग आ रहे हैं, वो लंदन में इंशाल्लाह हमारे वज़ीर ख़ारजा साहब शाह महमूद कुरैशी साहब और उनके साथ बाकी जो लोग आ रहे हैं उनके साथ शाना बशाना हम खड़े हैं। कश्मीरियों के लिए ये आवाज़ उठाएंगे और हमारी तमाम दोस्तों से गुजारिश है, तमाम पाकिस्तानियों से गुजारिश है कि यह पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि इंशाअल्लाह हम यकजा हो के उनके लिए आवाज़ उठाएंगे। हम भी बड़े जोशो खरोश से यहाँ से 5 फरवरी को लंदन जा रहे हैं और मकसद हमारा ये है कि यूनाइटेड नेशन की तारीख का ये सबसे पुराना इशू है और हमारी कोशिश होगी कि हम भरपूर एहतजाज करें और जो इंटरनेशनल फोर्सेस हैं, यूके की गवर्नमेंट है, पाकिस्तानी गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट है, हम उनको बावर करवाएंगे, इस मसले को हल करें। और ये मसला इसलिए भी ज़रूरी है कि ये 70 साल पुराना मसला है और पाकिस्तान और इंडिया पे 2 जंगें हो चुकी हैं इस इशू पे। दुनिया को ये बोधल करवाने की कोशिश कर रही है कि कश्मीर के इशू पे हम एक हैं, क्योंकि जिस तरह हिंदुस्तान और हिंदुस्तान की फ़ौज कश्मीरियों पे जुल्म ढा रही है, ये जुल्म की इंतहा तक पहुँच चुके हैं और यहाँ तक कि हिंदुस्तान के अपने जो लोग हैं वो भी ये उठ के कह रहे हैं कि वहाँ बहुत जुल्म हो रहा है। तो ये जो तंजीमें हैं जो इंसानियत से प्यार करती हैं, जो ह्यूमन राइट्स की चैम्पियंस हैं, वो मैं उनसे पुरज़ोर अपील करता हूँ कि पहले तो वो हमारे इस मिशन में हमारा साथ दें और जो हम ये यौम यकजहती कश्मीर मना रहे हैं 5 फरवरी को, उसमें भरपूर हिस्सा लें। उन्होंने मजीद कहा कि बरतानिया में बसने वाले पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी से दरख्वास्त है कि तमाम लोग इस एहतजाज में शामिल होकर ये बात साबित करें कि पूरी कौम कश्मीरियों के साथ खड़ी है। स्कॉटिश ह्यूमन राइट्स फोरम ग्लासगो के ज़ेरे एहतमाम होने वाले कश्मीर सेमिनार में मुकर्रीरीन ने खिताब करते हुए कहा कि उन्हें कश्मीर में होने वाली इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों, भारतीय हुकूमत और फ़ौज के मुजालिम से नौजवान नस्ल और आइंदा आने वाली नस्लों को आगाह करना चाहिए। मज़ीद तफसीलात जानते हैं शाहिद मीर की इस रिपोर्ट में। स्कॉटिश ह्यूमन राइट्स फोरम के ज़ेरे एहतमाम 5 फरवरी को यौम यकजहती कश्मीर भरपूर तरीके से मनाने और कश्मीरियों के हक में लंदन में होने वाले मुजाहरे में काफिले की रवानगी के हवाले से खसूसी सेमिनार मुनक्किद हुआ, जिसमें ग्लासगो में रहने वाले हर तबका फिक्र से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने शिरकत की। This is not problem of India and Pakistan. It is problem of the human violations of 12.5 million Muslims and non-Muslims living in Kashmir, who are being brutalized, who are being killed, who are being butchered. सेमिनार में तमाम सियासी और मजहबी जमातों से मुंसलिक अफराद ने शिरकत करके अपने जज्बात और एहसासात का इजहार किया। मुकर्रीरीन ने खिताब करते हुए कहा कि भारत को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल करना होगा। कश्मीर में इंसानी बुनियादी हकूक की पामाली अक़वाम मुत्तहिदा की कारकर्दगी पर एक सवालिया निशान है। मेंबर स्कॉटिश पार्लियामेंट अंस सरवर, कौंसल जनरल रुमान अहमद समेत दीगर रहनुमाओं का कहना था कि उन्हें सियासी और मजहबी वाबस्तगियों से बालातर होकर मजलूम कश्मीरियों की हर फोरम पर खुलकर हमायत करनी चाहिए। 1 लाख से ज्यादा अफराद इस जदोजहद में जामे शहादत में नोश कर चुके हैं। आप सब लोग जानते हैं कि तमाम शहादत के बावजूद कश्मीरियों की तारीख ना कि कमजोर हुई है बल्कि उससे और ज्यादा आगे बढ़ रही है और कश्मीरी अपना दिन रात इस बात पे लगा रहे हैं कि जामे शहादत नोश कर रहे हैं ताकि उनको उनका हक हासिल हो सके। जो कश्मीर में हमले हो रहे हैं और ह्यूमन राइट्स अब्यूसेस हो रहे हैं, हम नहीं बताते अपने बच्चों को कि आप उनके लिए भी आप आवाज उठाएं। वो भी हमारी बहनें हैं, वो भी हमारे भाई हैं, वो भी हमारे बच्चे हैं, वो भी हमारा इलाका है, वो भी हमारा इंटरेस्ट एरिया है। तो प्लीज सबसे ज्यादा बात ये है कि अपने बच्चों को प्लीज बताएं कश्मीर में क्या हो रहा है, उसमें मर्डर कितने हो रहे हैं, हमारे बच्चे कितने जालिम हो रहे हैं, कितने जख्मी हो रहे हैं, और उसके बाद हम इंटरनेशनल प्रोटेस्ट करें। और अगर आपकी तवक्को ये है कि वो आपका पैगाम हूबहू जिस तरह आप समझते हैं उस तरह समझ लेगा, अपना लेगा और उसके हिसाब से चल भी पड़ेगा, मेरे ख्याल में थोड़ा सा आप गलत सोच रहे हैं। दूसरे बंदे को जिसको आप पैगाम दे रहे हैं उसकी
सोच को जहन में रखते हुए पैगाम को डालिए। सेमिनार के एहतताम पर हाजरीन ने मिलकर कश्मीरियों के हक में भारतीय मुजालिम के खिलाफ भरपूर एहतजाजी मुजाहरा करते हुए शदीद नारेबाजी की। Stop killing in Kashmir! Stop killing in Kashmir! Stop killing in Kashmir! मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर के सीनियर वजीर चौधरी तारिक फारूक का कहना है कि 5 फरवरी कश्मीरियों के साथ यौम यकजहती के तौर पर मनाया जाता है। इस दिन पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में बसने वाले पाकिस्तानी और कश्मीरी मकबूजा कश्मीर में होने वाले मुजालिम पर भरपूर मजम्मत करते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान जुल्म जबर और इंतहा पसंदी की हदें पार कर चुका है। ल्यूटन में हमारे नुमाइंदे सफदर बुखारी से बात करते हुए उनका मजीद क्या कहना था, आइए आप भी देखिए। हर साल 5 फरवरी को कश्मीरियों के साथ यकजहती के दिन के एतबार से, और इसमें जितने पाकिस्तान के अंदर लोग हैं और पाकिस्तान से बाहर जितने पाकिस्तानी हैं, डायस्पोरा है, फिर कश्मीरी भी इसमें शामिल हो जाते हैं, तो ये ज़ाहिर यकजहती करते हैं रियासत जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ, और इस बात की तजदीद करते हैं कि रियासत जम्मू कश्मीर के अवाम को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हक़ खुदरादियत मिलना चाहिए, जो इस वक्त तक भारत ने नहीं दिया। इसके बजाय भारत वहां पे मकबूजा के रियासत जम्मू कश्मीर में जुल्म डा रहा है, फौजकशी हो रही है, मकान जलाए जा रहे हैं, गिरफ्तारियां हो रही हैं, जबर हो रहा है, तशद्दुद हो रहा है, बच्चों की बनाई छीनी जा रही है, और जो जुल्म के जितने तरीके हैं जो इतने नाजी इज़्म में भी नहीं थे, जितने इस भारतीय इज़्म में जो है वो ढाए जा रहे हैं, तो उन मजालम को उजागर करने के लिए और दुनिया को ये बताने के लिए कि वो हिंदुस्तान को मजबूर करें कि हिंदुस्तान जो है वो वहां से फौजें अपनी निकाले, जुल्म बंद करे और गिरफ्तार शुदा लोगों को रहा करे, और आजाद जम्मू कश्मीर के इलाके जो है उनके ऊपर जो LOC है उसके ऊपर जो फायरिंग होती है उसको बंद करे, और रियासत जम्मू कश्मीर के अवाम को जो है वो हक़ खुदरादियत दे, जो उसका उसने वादा किया था। और इसके लिए लंदन में 5 फरवरी को हुकूमत पाकिस्तान के नुमाइंदे भी, आजाद कश्मीर के भी नुमाइंदे और सारी सियासी पार्टियां और जितनी NGOs हैं, जितने डायस्पोरा है, जितनी ह्यूमन राइट्स की तंजीमें हैं, वो मुजाहरा कर रही हैं। तो मेरी तमाम जो बरतानिया में बसने वाले और यूरोप में बसने वाले कश्मीरी हैं, पाकिस्तानी हैं, उनसे अपील है कि वो इसमें भरपूर शिरकत करें और सब मरबूत होकर इकट्ठे होकर शिरकत करें और मजबूत होकर इस मुजाहरे को जो है वो कामयाब करें। और ये किसी एक सियासी पार्टी की जानब से नहीं है, बल्कि ये सबकी जानब से है, और ये कश्मीरियों की कुर्बानियों के साथ इज़हार यकजहती है, उनकी शहादतों के साथ इज़हार यकजहती है, उनकी जो नस्ल कुशी की जा रही है उनके साथ इज़हार यकजहती है, और उनके हक़ खुदरादियत के साथ जो है वो इज़हार यकजहती है। और मुझे उम्मीद है कि इस दफा इसको बेहतर तरीके से मनाया जाएगा, और जिस तरीके से हुकूमत पाकिस्तान दिलचस्पी ले रही है, मुझे अंदाजा है कि ये मुजाहरे जो हैं वो कामयाब होंगे और हिंदुस्तान इसका नोटिस भी लेगा और अक़वाम मुत्तहिदा भी इसका नोटिस लेगी। मजीद खबरें भी होंगी बुलेटिन का हिस्सा, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ UK। आज़ाद कश्मीर के साबिक वज़ीर आज़म और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सरबराह सरदार अतीक अहमद खान रुकन बरतानवी पार्लियामेंट खालिद महमूद के भतीजे की फातिहा ख्वानी के लिए उनके घर पहुँच गए। MP खालिद महमूद के भतीजे आसिम सलीम गुज़िश्ता दिनों वफ़ात पा गए थे। इस मौके पर साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर में सरदार अतीक अहमद खान ने रुकन बरतानवी पार्लियामेंट खालिद महमूद से ताज़ियत की। इस मौके पर सीनियर कश्मीरी रहनुमा चौधरी अली शान, कश्मीर राब्ता कमेटी के सदर चौधरी मोहम्मद अजीम, काउंसलर जफर इकबाल और दीगर भी मौजूद थे। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अतीक का कहना था कि उनकी बरतानिया आमद का मकसद मकबूजा कश्मीर में निहत्ते कश्मीरियों पर भारतीय मुजालिम के खिलाफ एहतजाज करना है। वो ओवरसीज़ कश्मीरियों के साथ मिलकर भारतीय मुजालिम के खिलाफ भरपूर आवाज़ बुलंद करेंगे। MP खालिद महमूद ने कहा कि कश्मीर इशू पर मुत्तहिद होकर आगे बढ़ना होगा। उन्होंने ताज़ियत के लिए आने पर सरदार अतीक का खुसूसी शुक्रिया अदा किया। यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से पाकिस्तान हाई कमीशन कुआलालंपुर मलेशिया में एक तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में मलेशिया में मुकीम पाकिस्तानी कम्यूनिटी के अलावा मारूफ सियासी तज्जिया निगारों, तारीखदान, दानश्वरों, इंसानी हुकूक की तंजीमों के नुमाइंदों, तालिब इल्मों ने भरपूर शिरकत की। तकरीब का मजीद अहवाल बता रहे हैं जावेदुर रहमान अपनी इस रिपोर्ट में।
तकरीब का आगाज तिलावत कुरान पाक से हुआ, जिसके बाद कश्मीर में भारतीय रियासती जबर, जुल्म, बर्बरियत और इंसानियत सलूक पर पेश किए जाने वाली डॉक्यूमेंट्री देखकर हर आंख अश्कबार और हर दिल अफसुर्दा हो गया। मारूफ बैनुल अक़वामी स्कॉलर और इंटरनेशनल मूवमेंट फॉर जस्ट वर्ल्ड के बानी और चेयरमैन डॉक्टर चंद्रा मुजफ्फर ने 92 न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि अब वो वक्त आ गया है कि लोग मकबूजा कश्मीर के बेटों और बेटियों के हक के लिए उठ खड़े हों। उन्होंने तजवीज़ पेश की कि मलेशिया समेत अक़वाम मुत्तहिदा के मेंबर्स ममालिक अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में करारदाद पेश करें, जिसमें भारत को पाबंद किया जाए कि वो सिक्योरिटी काउंसिल की करारदाद पर अमल करते हुए निहत्ते और मजलूम कश्मीरियों को उनका हक के खुद इरादियत दे। It is the first time in a long while that the UN has come out with a comprehensive report on human rights violations in Kashmir, and it has suggested an independent inquiry, and it has, I think, quite explicitly criticized India, specifically the Indian occupation forces, for excessive force. यूनिवर्सिटी पत्रा मलेशिया के प्रोफेसर डॉक्टर हाफिजी मोहम्मद नूर ने अपने खिताब में कहा कि फ़लस्तीन की तरह मकबूजा कश्मीर में जिस तरह इंसानी हकूक़ की धज्जियां पामाल करते हुए जुल्म और बर्बरियत की दास्तान रकम की जा रही है, इससे इंसानियत के सर शर्म से झुक जाते हैं। Others can correct me. So we have the Pakistan part of Kashmir, the Indian part, and also the one that has been disputed by India and China. That is as far as my knowledge is concerned. Please correct me and also update me on the... पाकिस्तानी हाई कमीशन कोलालमपुर के चार्ज डी अफेयर्स आतिफ शरीफ ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा, लॉर्ड माउंट बेटन ने तकसीम हिंद के वक्त सोची समझी साजिश और तारीखी बददियानती का इर्तकाब करते हुए मुस्लिम अक्सरियती इलाके गुरदासपुर को भारतीय जोग्राफियाई हदूद में शामिल करके रियासती जबर की शर्मनाक बुनियाद रखी। Kashmir's ruler Maharaja Hari Singh was a Hindu, but the majority of the population, about 85%, were Muslims. By any consideration, whether the majority of the population or the geographical location, as the video also told you that the rivers flow through Pakistan, the roads are connected to Pakistan, the trade was happening through Pakistan. So by all considerations, Pakistan was the natural, just and only sustainable choice for Kashmir. पाकिस्तानी हाई कमीशन मलेशिया में तैनात हेड ऑफ चांसरी शहजाद हुसैन और फर्स्ट सेक्रेटरी गुलाम हैदर ने सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी और वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान के यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से पैगामात पढ़कर सुनाए। Innocent Kashmiris has become a case study in unprecedented violence. Thousands of innocent Kashmiris have been brutally tortured and extrajudicial killed during the forced disappearances or illegal custody by the Indian occupation forces. The government of Pakistan and its people demonstrate to our Kashmiri brothers and sisters and the world at large that we have not forgotten the long pending dispute of Jammu and Kashmir and the struggle of the people of Indian occupied Jammu and Kashmir against woeful Indian occupation. तकरीब में मलेशिया में तैनात पाकिस्तानी डिफेंस अताशी कमोडोर इब्रार इसहाक, कम्युनिटी वेलफेयर अताशी डॉक्टर अल्तमश अंजनजुआ, वीजा काउंसलर मोहम्मद अफजाल ताहिर, उम्मीद अली कल्होड़ और पाकिस्तानी स्कॉलर डॉक्टर मोहम्मद हसन के अलावा मलेशिया की मुअज़्ज़ज़ शख्सियात ने खास तौर पर शिरकत की। यौम यकजहती कश्मीर के मौके पर कश्मीर कम्यूनिटी जद्दा का खुसूसी इजलास हुआ, जिसमें कश्मीरी अवाम के हक़ खुद इरादियत के लिए उनकी जदोजहद पर इजहार यकजहती किया गया। कमेटी ने मुतफ़िका तौर पर एक करारदाद मंजूर की, जिसमें भारत के ज़ेरे तसल्लुत कश्मीर में जारी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों की मज़म्मत की गई। करारदाद में भारत से मुतालबा किया गया कि कश्मीर में रियासती बालादस्ती के तहत मुनज़्ज़म इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों को फौरी तौर पर रोका जाए और बैनुल अक़वामी इंसानी हुकूक की तंजीमों को कश्मीर तक गैर मशरूत रसाई की इजाज़त दी जाए। कश्मीर कमेटी ने कश्मीरी जदोजहद के लिए पाकिस्तान की सियासी, इखलाकी और सिफारती मुआवनत की तारीफ की। इजलास में काउंसिल जनरल शहरियार अकबर खान, डिप्टी काउंसिल जनरल शाइक भुट्टो, सदर कश्मीर कमेटी जद्दा मसूद पूरी और दीगर शामिल थे। इसी के साथ ही ये बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा। किसी खबर की तलाश हो तो जरूर विजिट कीजिएगा हमारी वेबसाइट 92newshd.tv और देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।